डायफ्राम काम करता है। Here is a sample animation showing the heart and the movement of the diaphragm. ये देखिए डायफ्राम ऐसे मूव होता है, ये देखिए। This movement of the diaphragm allows the lungs to change volume, bringing in fresh air and expiring old air. सारी अशुद्ध वायु बाहर निकलती है, The movement of the diaphragm शुद्ध वायु also अंदर जाती है। displaces and massages the internal organs. ये हमारे फेफड़े हैं और ये डायफ्राम है ये। Mechanics of breathing. Consciously take a breath and think about the fact that there are 10 different muscle groups working together to make this happen. These muscle groups include the diaphragm and intercostal muscles. The main muscle used for breathing is the diaphragm. The diaphragm is a dome-shaped structure consisting of several large muscles, which is sandwiched between the chest cavity, containing the lungs and the rib cage, and the abdomen, containing the digestive system, including your stomach. The muscles that move the rib cage itself are the internal and external intercostal muscles. They are each attached to the ribs and run between them. To inhale air, the diaphragm contracts and moves down, while the external intercostal muscles contract, forcing the rib cage up and out. The combined effect of the diaphragm and intercostal muscles increases the volume of the chest cavity and expands the lungs. This expansion of the lungs increases their volume, reducing the pressure within them, causing air to be drawn in. This action is similar to a piston sucking petrol into a car engine. In normal breathing, we use around 25% of our lung capacity, which is called our tidal volume. As you inhale deeply, the diaphragm moves further down into the abdomen, pushing your belly out, giving more room for the lungs to expand and draw in more air. This type of breathing is called belly breathing or abdominal breathing and is critical to prepare you for your free dive. Belly breathing allows you to completely fill your lungs with air. The maximum amount of air your lungs can hold is called your total lung capacity. With training, you can use more of your lung capacity. कपालभाति प्राणायाम, जिसमें मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है ना? देखो अभी इसमें क्या दिखाया गया है कि अगर हम डायफ्राम को यूज करते हैं, जो कपालभाति करता है वो डायफ्राम को हैवी ड्यूटी पंप बना देता है। रोज कपालभाति की प्रैक्टिस करोगे ना तो कपालभाति क्या करता है, हमारे ब्रेन के लिए यूनिक टॉनिक है वो। तो ये जो मेन पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सारा मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैनक्रिया, एड्रिनल, है ना, फिर गोनेड्स होते हैं, सेक्सुअल ग्लैंड। जितनी भी तकलीफ हमको होती है शरीर में, इन ग्लैंड्स के जो सिक्रेशंस है ना, जो स्त्राव है, वो इम्बेलेंस हो जाते हैं तो हमारे शरीर में सारी बीमारियां आती हैं। अगर हम कपालभाति रोज करें, देखो एक दो दिन का काम नहीं है, अगर आप रोज कपालभाति करोगे ना तो आपको थायराइड, चाहे हार्ट की तकलीफ, चाहे आपको डायबिटीज की कोई भी पीड़ा आपको नहीं रहेगी। इफ यू डू कपालभाति वेरी रेगुलरली। तो चलें सभी, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं श्वसन मार्ग शुद्धि। राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा लें सभी, हथेली ऊपर की तरफ रखें, आंखें बंद करें, फेंको सांस को बाहर 10, 15, 20 या 25 बार। अपोजिट साइड, रिलैक्स। राइट, इसके बाद सबसे पहला हम चालू कर रहे हैं प्राणायाम, जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति हम दोनों ही नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हैं। कपालभाति जो है आपके डायफ्राम, जो भी हमने पिक्चर देखी ना, डायफ्राम ऊपर उठता है तो हम सांस छोड़ते हैं, डायफ्राम नीचे आता है तो हम सांस लेते हैं, बराबर। लेकिन कपालभाति में क्योंकि हमारा ब्रीदिंग रेट, हम 1 मिनट में कितने स्ट्रोक लेते हैं? 60, मतलब 60 बार सांस लेते हैं। वैसे कितने लेते हैं? 15 बार।
तो 4 गुना ज्यादा हम डायफ्राम को यूज करते हैं। तो डायफ्राम तो कुछ छतरी के आकार को दिखाया गया ना, उसमें क्या होता है, जैसे हम स्ट्रोक लेते हैं ना, ये देखिए डायफ्राम ऊपर उठता है और ऊपर पूरे लंग्स हैं। ये डायफ्राम छतरी के आकार का, नीचे पेट होता है, इसके ऊपर छाती होती है, राइट। अब जैसे ही हम एक एक स्ट्रोक कपालभाति का ले रहे हैं, तो ऊपर जितनी भी अशुद्ध वायु है हमारे ट्रैकिया में, विंड पाइप में या वो लंग्स में, सारी अशुद्ध वायु बाहर निकलती है। और डायफ्राम जैसे ही ऊपर उठता है ना, सांस को छोड़ता है, नीचे पेट है, तो पेट के सभी अंगों को मसाज देता है, जैसे लीवर है, स्प्लीन, पैनक्रिया, गल ब्लैडर। तो ये कपालभाति जो है पेट और पाचन के राम बाण औषधि का काम करता है, राइट। चलें सभी, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लो। ध्यान को मूलाधार चक्र पर रखो। अगर कोई यहाँ मूलाधार चक्र लगाकर कर सकते हैं तो कपालभाति करो प्लीज। मूलाधार चक्र मतलब मलद्वार से लेकर मूत्र द्वार की एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करो और कपालभाति करके देखो आप। इसी स्पीड में लगातार कॉन्ट्रैक्ट करके रखो। अगर मूलबंध निकल जाता है, छूट जाता है, तो फिर से आप उसको अप्लाई करो और कपालभाति मूलबंध में ही करें। बिना आवाज के होती है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। बहुत ही मुख्य है यहाँ स्पीड। जिस गति से हम कर रहे हैं कपालभाति, उसकी गति होनी चाहिए 60 स्ट्रोक्स हम लें कपालभाति के 1 मिनट में, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। शुरुआत में आप जब शुरू करते हैं कपालभाति, आप 10, 15 या 20 स्ट्रोक एक साइकिल में, ऐसे 3 साइकिल्स को रिपीट कर सकते हैं। आंखें बंद कर लें, नासिका से घर्षण का आवाज करते हुए 20 स्ट्रोक लेंगे हम, फिर थोड़ा ठहरेंगे, फिर 20, फिर थोड़ा ठहरेंगे। जहां भी सर भारी लगे, चक्कर आने लगे या रिदम टूटने लगे, बस आप वहीं थोड़ा ठहर जाएं, आराम करें, फिर उस अभ्यास को शुरू करें कपालभाति। स्ट्रोक के पूरे होते ही आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और अगले रिपीटेशन के लिए फिर से 20 स्ट्रोक लें। आप चाहें तो कपालभाति को एक ही समय पर 60 स्ट्रोक या उससे ज़्यादा भी समय कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आप बिल्कुल ही शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही आरामदायक स्थिति में हैं, चेहरे पर कोई तनाव ना आने पाए और लयबद्धता टूटने न पाए स्ट्रोक्स की। हम रिपीटेशन कर रहे हैं कपालभाति का, फिर से 20 स्ट्रोक लेंगे। आप देखें पेट की तरफ, लगातार पेट का संकुचन होने से डायफ्राम जो छतरी के आकार की मसल होती है, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स, जब हम कपालभाति करते हैं तो डायफ्रामेटिक मसल जो है वो काफी सक्रिय हो जाती है। इस तरह इसके नीचे पेट होता है, ऊपर चेस्ट होती है। और जब हम कपालभाति करते हैं तो उस समय हमारी ये जो डायफ्राम मसल है वो किस तरह मूवमेंट होती है, इस तरह। नीचे पेट होने की वजह से लगातार पेट के अंगों को मसाज मिलती है और जब ये डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है तो जितनी भी हवा रही हुई है, चाहे हमारे विंड पाइप में, हवा के पाइप में या फिर हमारे लंग्स में, वो सारी रेसिडुअल एयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कपालभाति एक यूनिक ब्रेन टॉनिक है और कपालभाति से डायफ्राम एक हैवी ड्यूटी पंप बन जाता है।
यस, देखा सभी ने, ज्यादा अच्छा दिखता है ना इसमें जितेंद्र भाई, यू कैन सी मोर बेटर वे। अब मुझे कौन बताएगा? एब्सोल्युटली परफेक्ट। यस, थैंक यू, आज मैं सीख गया हूँ, मैं कल भी शाम को नहीं कर पा रहा था। अब और मुझे ये कौन, हाँ यस यस प्लीज। ये डिटेल्स समझा क्या नहीं होता है, देखने में जो मजा आता है वो हाँ पूरा साइंटिफिक समझा सकते हैं इसमें आप। यस, अभी मुझे कौन बताएगा कि कपाल भाती कौन नहीं कर सकता है, प्लीज मुझे बताइए, कपाल भाती कौन नहीं कर सकता है? हाई बीपी, पीपल विथ हाई बीपी। यस, और प्लीज बताइए। प्रेग्नेंट लेडी। हाँ, जब से गर्भ ठहरा है तब से 9 महीने तक कपाल भाती नहीं कर सकते हैं। और मासिक धर्म में मासिक धर्म के कितने दिन? पहले 3 दिन। पहले 3 दिन। यस। अगर समझो आपको इरेगुलर ब्लीडिंग होती है ना, या फिर इंटरप्टेड ब्लीडिंग होती है, या फिर मासिक धर्म की अनियमितता है, तो फिर आपको जब तक मासिक धर्म रेगुलर नहीं हो जाता है या फिर एक तो उसमें ब्लीडिंग बढ़ने का पूरा चांसेस होता है। यस, अभी देखो कैसे पता चलेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर, मुझे अभी समझो मैं पेशेंट हूँ ब्लड प्रेशर का, मैं कपालभाति कर रहा हूँ, राइट, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे नहीं करना है? टेल मी प्लीज एनीबडी। यस, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करो, बताओ मुझे, बोलो। हाँ, कपाल भाती करते समय अगर आपको सर भारी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, या बहुत अनईजी फील हो रहा है, मतलब आपको उस वक्त कपालभाति नहीं करनी है। क्योंकि ब्लड प्रेशर वाले भी कपालभाति कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें बीपी हाई रहता है। तो एक ही क्या मापदंड हमने रखा है कि कुछ भी आप कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपको क्या नहीं करना है, बताओ मुझे। आपको हर आसन, हर प्राणायाम, every action is yoga is called the relaxation, right?